Hello, friends, and welcome to UPSC Made Simple. Today is 15th of August, and happy Independence Day to all of you. May you get whatever you want, and may you get what you're trying to get. आप लोग अगर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हो तो आई होप टू सी ऑल इन यूनिफॉर्म समडे एंड आई एम श्योर दैट विल गोना हैपन वन डे. Keep working hard and I'm sure you will succeed. So आज इंडिपेंडेंस डे तो एज सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स सबसे पहले बात करेंगे हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. ठीक है, तो क्या इंडिपेंडेंस एक्ट भी हो जाएगा और एग्जैक्टली हमें पता भी चल जाएगा कि क्या क्या उसमें नीटी ग्रीटीज़ है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस. On 3rd June 1947, लॉर्ड माउंटबैटन, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वहाँ वो टाइम पे वाइसरॉय कौन थे 1947 में? माउंटबैटन. उन्होंने एक पार्टीशन प्लान रखा. वो पार्टीशन प्लान का नाम क्या था? द माउंटबैटन प्लान. वंस ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज अग्री टू द पार्टीशन स्कीम. ठीक है, सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने अग्री किया किसके लिए? पार्टीशन के लिए. बेस्ड ऑन माउंटबैटन प्लान, Independence was introduced in the House of Commons on 4 July 1947. 4 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंस जो बिल है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में रख दिया गया था. कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में. द बिल वॉज रैटिफाइड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 18 जुलाई 1947 एंड इंडिया बिकेम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. 18 जुलाई 1947 को वो ratify हुआ था. ठीक है, दिस वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन द colonial हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट मार्क द एंड ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. इंडिया अभी इंडिपेंडेंट होने वाला था. However, it was final culmination of British policy of divide and rule, as the act laid the basis of partition on India and a new state Pakistan was created. ठीक है, डिवाइड एंड रूल का एक आउटकम था जिसके वजह से पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड. अभी सेलियंट फीचर्स क्या है ये इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के देख लेते हैं. इट मार्क द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है, एंड ब्रिटिश वर ऑफिशियली टू लीव बाय 15th of August 1947. The act declared India as independent and sovereign state from 15th August of 1947. It dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states and treaty relations with tribal areas from 15 August 1947. Indian Independence Act provided for partition of the country and created two independent dominions. कौन से independent dominions create किए Indian Independence Act ने? India and Pakistan. This will take effect from 15th August 1947 with the implementation of the act. It granted freedom to the Indian princely states either to join the dominion of India or dominion of Pakistan or to remain independent. मतलब they had choice to remain independent or either joined any of the country which is India and Pakistan. Office of Viceroy was abolished by Act. Each dominion was to have a Governor General to be appointed by British Crown on the advice of the responsible government in each dominion. ठीक है, Governor General so appointed would be constitutional head of the state and responsible for effective operation of the act. It designated the Governor General of India as the provincial governors as constitutional, जो nominal head होते हैं state के. They were made to act on the advice of the respective council of ministers in all matters. His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with respect to government of India or Pakistan. The Constituent Assembly of these two dominions were to also act as the legislature of the respective dominion. मतलब जो Constituent Assembly थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही थी, वो ही they were also supposed to act as the legislature, मतलब law making bodies भी. Existing central legislative assembly and council of states were automatically dissolved with passing of the act. It empowered the constituent assemblies of each dominion to frame and adopt constitution to the respective dominion and nation dominion or nation.
The dominions were also to be free to repeal any act of the British Parliament, including the Independent Acts etc. मतलब वो चाहे तो जो इंडिपेंडेंट एक्ट है उसको भी रिपील कर दे, कौन चाहे तो दो डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान. The Indian Independence Act of 1947 was not a constitutional document in any manner, and hence it held that until a new constitution came into force, the 1935 Act would work as a constitution law of India. ठीक है, important point है कि जब तक कोई नया लॉ, नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 would work as a constitutional law of India. No act of the British Parliament passed after 15th August 1947 was to extend to either of the dominions. ठीक है. The office of the Secretary of State for India was abolished. ठीक है. The act also provided for continuation of all benefits of the civil services servants appointed on or before 15th of August 1947. However, it discontinued the appointment to civil services and reservation of post by the Secretary of India. ठीक है. ओके. ठीक है, चलो ये हो गया था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 15th of August 2020. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट्स फाइंड भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट फॉर ट्वीट्स. जो जो ये है, जो सिविल राइट्स लॉयर है प्रशांत भूषण, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एक इमेज बनाई थी किसकी, जो हमारे सीजीआई है शरद बोबडे जी की, एंड यू नो इट सम पिक्चर ऑफ अ बाइक एंड इट बट बेसिकली इट अमाउंटेड टू द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. मतलब ऐसे ये करना चाहा कि वो इट स्कैंडलाइजेस द सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन. तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट मतलब ने क्या बोला कि सिविल राइट्स लॉयर जो है प्रशांत भूषण को गिल्टी किया क्रिमिनल कंटेम्प्ट बाय स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट. तो हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है. ठीक है. बेसिकली ये जो बेसिक आइडिया होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, इट इज़ टू पनिश दोज हु डू नॉट रिस्पेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट. इन द इंडियन कंटेक्स्ट, कंटेम्प्ट इज ऑल्सो यूज टू पनिश स्पीच that lowers the dignity of the court and interferes with the administration of justice. ठीक है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो काइंड के होते हैं बेसिकली, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सिविल कंटेम्प्ट कौन सा कंटेम्प्ट होता है, दैट इज द विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट. ठीक है, ये सिविल कंटेम्प्ट होता है. क्रिमिनल कंटेम्प्ट कौन सा होता है, criminal, that is written or spoken words or any act that scandalizes the court or lowers its authority or prejudices or interferes with the due course of a judicial proceedings or interferes or obstructs the administration of justice. ये होता है criminal content. ठीक है. अभी इसके प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 129 और 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. मतलब 129 में सुप्रीम कोर्ट और 215 में हाई कोर्ट. क्यों, टू पनिश पीपल फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंटेम्प्ट. सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 defines the power of high court to punish contempts of its subordinate courts. ठीक है. The constitution, this is a very important point, the constitution also includes contempt of court as a reasonable restriction to the freedom of speech and expression under article 19. ठीक है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है किस में, आर्टिकल 19 में. आर्टिकल 19 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, अलॉन्ग विथ एलिमेंट्स लाइक पब्लिक ऑर्डर एंड डिफेमेशन. सो ये हमें समझ गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एग्जैक्टली होता क्या है. गहलोत गवर्नमेंट विंस राजस्थान ट्रस्ट वोट. ओके ठीक है, इतना ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत. इंडिया बिलीव्स इन पीस सेज प्रेसिडेंट कोविंद. आवर हॉनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ गिवन अ ब्यूटिफुल स्पीच. इफ़ you guys can just search speech from President Kovind, you would get, and it is a very beautiful speech. It will help you in writing answers in the mains.
ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग. NIA summons 2 DU teachers. NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 टीचर्स को लिया है हिरासत में. क्यों लिया है हिरासत में? इन द 2018 भीमा कोरेगांव केस. इफ़ यू गाइज रिमेंबर द भीमा कोरेगांव केस विच इज़ हैपेंड 1 जनवरी, जो पुणे में हुआ था 2018 में. वहाँ पे वायलेंस हुआ था, वायलेंस ट्रक हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू it was said that Naxal activities and Maoist ideology को लेके कुछ हुआ था. So that is not our concern. Our concern is what is NIA. ठीक है, the National Investigation Agency was constituted under the National Investigation Act of 2008. 2008 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी. 2008 में क्या हुआ था, जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे उसके बाद NIA को कॉन्स्टिट्यूट किया गया. ठीक है, it is a central agency to investigate and prosecute offences. Okay, कौन से offences? Affecting the sovereignty, security and integrity of India, security of state, friendly relation with foreign states, against atomic and nuclear facilities, smuggling in high quality counterfeit Indian currency. What does it implement? It implements international treaties, agreements, conventions, resolutions of the United Nations, its agencies and international organization. इसका ऑब्जेक्टिव और क्या क्या है? टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया. इट एक्ट्स एज ए सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. इंपॉर्टेंट है, इट एक्ट्स एज ए सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली, ब्रांचेस हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू. कौन करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिव्यूज द मैन पावर, फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स ऑफ NIA फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था NIA एक्ट 2008 में. क्या अमेंडमेंट हुआ था? NIA अमेंडमेंट बिल 2019 वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट अमेंडिंग द ओरिजिनल एक्ट ऑफ 2008. अभी क्या बोलता है ये? कई चीज़ें ऐड करता है कई इन्वेस्टिगेशन का राइट्स NIA को थोड़ा देता है. किन किन चीज़ों में? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, offenses related to counterfeit currency or banknotes, manufacture of or sale of prohibited arms, cyber terrorism and offenses under offenses under the Explosive Substances Act of 1908. ठीक है, so that's all from NIA. I hope you understood what NIA is and इसके बारे में हमने थोड़ा जाना. ठीक है, man drones during idle immersion. एक 23-year-old man was drowned in the Yamuna River in the southeast Delhi, कालिंदी कुंज. ठीक है, तो हमारा मेन फोकस रहेगा यमुना रिवर के बारे में. यमुना रिवर क्या है? ठीक है, तो बेसिकली यमुना रिवर रिसेंटली थोड़े दिन पहले न्यूज़ में था, क्योंकि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो उसने कई सैम्पल्स कलेक्ट किए थे 9 लोकेशंस में along the Yamuna River and 20 locations of drains and compared to different parameters with values from April 2019 से कलेक्ट किए थे. तो क्या बोलते? According to the report, the pollution has reduced between 18% to 21% at various places. क्या बोलते हैं कि ये कम हुआ है pollution. 5 locations have shown 18 to 33% reduction in biochemical oxygen demand. BOD जिसको बोलते हैं biochemical oxygen demand. ठीक है, the rest of the locations have shown slight to considerable increase in BOD levels. ठीक है, कई जगह पे BOD levels बढ़े. 4 of the 9 locations where dissolved oxygen was nil in 2019 showed DO levels, dissolved oxygen levels of 2.3 to 4.8 milligram per liter in 2020. अब ये बेसिकली जानते हैं हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको BOD बोलते हैं, वो क्या है? What is BOD? It is the amount of dissolved oxygen needed by microorganisms to decompose organic matter under
एरोबिक रिएक्शन, मतलब एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या बोलता है बीओडी? इट इज़ एन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। द मोर ऑर्गेनिक मैटर देयर इज, जैसे सीवेज है, पोल्यूशन है पानी में, जो भी है, द ग्रेटर इज द बीओडी। मतलब द मोर ऑर्गेनिक मैटर, द ग्रेटर इज द बीओडी, एंड द ग्रेटर द बीओडी द लोअर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है अवेलेबल फॉर हायर एनिमल सच एज फिशेस, ठीक है। ज़्यादा बीओडी मतलब हायर लेवल ऑफ बीओडी मीन्स दैट मोर ऑक्सीजन इज नीडेड टू डीकम्पोज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। सो मतलब बेसिकली ये हम लोग जान सकते हैं, हायर बीओडी मतलब वाटर इज मोर पोल्यूटेड। जितना ज़्यादा बीओडी लगता है उतना ज़्यादा पोल्यूशन है, ठीक है। अब यमुना रिवर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। द रिवर यमुना, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गैंजेस, originate from the Yamunotri Glacier near the Bandarpooch Peak in the Mussoorie Range of the Lower Himalayas, ठीक है। मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालयाज कहाँ से होती है? बंदरपूछ, ठीक है। एट द एलिवेशन ऑफ अबाउट 6,387 मीटर्स अबाउट द मीन सी लेवल इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। यमुनोत्री से आती है बंदरपूछ में, ठीक है, बंदरपूछ से। It meets the Ganga at the Sangam where the Kumbh Mela is held, ठीक है। तो गंगा को कहाँ पे मिलते हैं? यमुना प्रयागराज में, ठीक है। कुंभ मेला वहाँ पे ये किया जाता है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, ठीक है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली, ये 4 जगह से जाती है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में आती है। लेंथ कितनी है? 1376 किलोमीटर्स। इम्पॉर्टेंट डैम कौन से है इसके ऊपर? लखवार व्यासी डैम जो उत्तराखंड में, और तेजे वाला बैरेज डैम जो हरियाणा में, ठीक है। और कई कई भी है। इसके इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो आई होप आपको यमुना रिवर के बारे में कुछ अच्छी बातें पता चली होंगी, ठीक है। सी गाइज, दैट्स हाउ यू रीड अ न्यूज़पेपर। मतलब न्यूज़पेपर में सिर्फ न्यूज़ नहीं होता, न्यूज़ एक कंटिन्यूएशन होता है जो एक कंसेप्ट फॉर्म करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और हम लोग न्यूज़ को एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखते कि अगर ये न्यूज़ में, तो इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस क्या होंगे। मोहन चंद शर्मा टू बी अवॉर्डेड गैलेंट्री मेडल पोस्टह्यूमसली फॉर 7th टाइम। क्या हुआ था? बेसिकली 2008 में बाटला एनकाउंटर हुआ था, जहाँ पे 35 दिल्ली पुलिस पर्सन वर कन्फर्ड द मेडल फॉर सर्विस ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो इनकी डेथ हुई थी बेसिकली। जो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा है, ही वॉज किल्ड ड्यूरिंग द बाटला 2008 बाटला एनकाउंटर, ठीक है। तो 35 पुलिसमैन को बेसिकली दिया गया है ये टाइम हॉनर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये बेसिकली अवार्ड्स कौन से होते हैं इंडिया में, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप के अवार्ड होते हैं, एक सिविलियन अवार्ड होता है और एक गैलेंट्री अवार्ड होता है, ठीक है। अब सिविलियन अवार्ड क्या होता है? सिविलियन अवार्ड आर कन्फर्ड टू द पीपल with outstanding achievements in the field of work. The awards are presented to the respective recipients by President of India on Republic Day, ठीक है। सिविलियन अवार्ड रिपब्लिक डे पे होते हैं। द इंसेप्शन ऑफ दीज सिविलियन अवार्ड्स इज 1954 में, 1954 से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। Civilian awards are categorized according to degree of honor. The civilian awards conferred are, कौन से civilian awards है जो confer किया था? भारत रत्न, which is highest degree of honor, is the first degree of honor, भारत रत्न। फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं? गैलेंट्री अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू पर्सनल इन द फोर्सेस फॉर ब्रेवरी एंड वेलोर। The gallantry awards that are conferred in India are as follows. ये gallantry awards basically ये इसमें ऑर्डर में है: परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र,
अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है, अभी थोड़े फैक्ट्स देखते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। द फर्स्ट थ्री अवार्ड्स कौन से हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ठीक है, ये जो होते दीज अवार्ड्स, ये जो तीन अवार्ड होते हैं उस वो इंडिपेंडेंस के बाद आए थे एग्जिस्टेंस में। ठीक है, द फर्स्ट थ्री अवार्ड्स कैटेगरी दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1947 के बाद आए थे परमवीर चक्र, महावीर और वीर। These awards were conferred twice a year on Republic Day and Independence Day. Very important, जैसे हमने बात की, 2 टाइम इन अ ईयर दिया जाता है, Independence Day and Republic Day. The other three gallantry awards were introduced in 1952. Ashok Chakra Class 1, Ashok Chakra Class 2, Ashok Chakra Class 3. Later they were named as Ashok Chakra, Kirti Chakra and Shaurya Chakra. पहले अशोक चक्र ही थे तीनों, Class 1, Class 2, Class 3. फिर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र किया था। द गैलेंट्री अवार्ड्स हैव अ सर्टन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द रिसिपिएंट्स। क्या रिसिपिएंट्स के लिए है? द बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस अवार्ड्स आर, इन केस ऑफ आर्म फोर्स द अवार्ड इज इनिशिएटेड बाय द यूनिट। ओके, recommended personnel name are sent to the service headquarters under the supervision of commanders in the chain. The award committee verifies the list and gets it approved by chiefs before sending the proposal to the Ministry of Defense. That's all. I hope आपको समझ में आया रहेगा गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं एंड सिविलियन अवार्ड्स, ये अवार्ड्स कौन से अवार्ड्स होते हैं अपने इंडिया में। एंड आई होप someday even you would get it for your excellence in work. We are not going to discuss the editorials because हमारा फोकस न्यूज़ में रहेगा एंड प्रीलिम्स के बाद हम, मतलब जो October 4 है उसके बाद हम एडिटोरियल डिस्कस करना चालू करेंगे। ठीक है, टिल देन वी विल फोकस ऑन प्रीलिम कंटेंट ओनली। कोर्ट एक्सटेंड स्टेटस क्यो ऑन आंध्र प्रदेश कैपिटल शिफ्टिंग। ठीक है, स्टेटस क्यो मतलब जहाँ हो वहाँ पे चले जाओ, मतलब जहाँ हो वैसे ही रहो। ठीक है, स्टेटस क्यो ध्यान रखना। क्या हुआ था बेसिकली आंध्र प्रदेश में, किस चीज़ के लिए स्टेटस क्यो बोला? डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एंड CRDA रिपील्स एक्ट टिल August 7। मतलब ये जो एक्ट है उसको रुकने के लिए बोला है। द कोर्ट वॉज लुकिंग इन टू पेटिशंस फाइल्ड बाई फार्मर्स अगेंस्ट द प्रपोज शिफ्टिंग ऑफ राजभवन। जो राजभवन का शिफ्टिंग है, CMO एंड सेक्रेटरीट टू एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम एंड द हाई कोर्ट टू जुडिशियल कैपिटल कुरनूल। मतलब 2 कैपिटल, एक विशाखापट्टनम में और एक जुडिशियल कैपिटल कुरनूल। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का क्या बोलना है कि एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होने से अच्छा जो डेवलपमेंट है उसको डिसेंट्रलाइज करके, क्योंकि जहाँ पे वो जाएगा कोर्ट, सपोज कोर्ट कुरनूल में जाएगा तो कुरनूल एरिया डेवलप भी होगा और ऐसा होगा। तो दैट्स व्हाट द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थिंक्स। ओके, इंडिया हेल्स UAE इजराइल पैक्ट रीइटरेट्स पैलेस्टीनियन कॉज। UAE और इजराइल के बीच में अभी पीस डील साइन हुई है। तो हमारे S जयशंकर है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने बोला है वेरी नाइस UAE इजराइल, बट पैलेस्टीनियन कॉज के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो हम बात करेंगे UAE इजराइल के बारे में। ठीक है, क्या हुआ था रिसेंटली? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ अनाउंस्ड that Israel and UAE, United Arab Emirates, have agreed to establish full diplomatic ties as part of the deal to halt the annexation of occupied land sought by Palestinians for their future state. ठीक है, अब क्या है बेसिकली, बोथ द UAE एंड इसराइल दोनों है क्लोज एलाइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। UAE has become the first Gulf Arab state to do so and only the third Arab nation to have active diplomatic ties with Israel। ठीक है, ये तीसरा अरब नेशन है
जिसके डिप्लोमेटिक टाइज है अभी विथ इज़राइल. इजिप्ट मेड अ पीस डील विथ इज़राइल इन 1979 फॉलोड बाय जॉर्डन इन 1994. ठीक है. Under the deal, Israel would suspend its plans to annex large parts of the occupied West Bank. ठीक है. ये डील के बाद जो इसराइल है वो सस्पेंड करेगा इट्स प्लान टू एनेक्स लार्ज पार्ट्स ऑफ द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक. द वेस्ट बैंक इज सैंडविच बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन. वेस्ट बैंक है, अगर आप मैप देख रहे हो, अगर आप गूगल सिर्फ कर लो एक बार मैप, तो वेस्ट बैंक आपको दिखेगा. ये सैंडविच है. सैंडविच मतलब बेसिकली दोनों के बीच में है, इसराइल और जॉर्डन के बीच में. वन ऑफ इट्स मेजर सिटीज़ इज़ रामल्ला, द डी फैक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ पैलेस्टीन. डी फैक्टो एंड डी ज्योरे. डी फैक्टो एंड डी ज्योरे मतलब क्या होता है? डी फैक्टो मतलब असली में जो कैपिटल है, एंड डी ज्यूरे मतलब जो सिर्फ नाम का है. मतलब डी फैक्टो, जैसे डी फैक्टो इज़ जो पूरा हमारा इंडिया चला था वो है प्राइम मिनिस्टर, बट डी ज्योरे मतलब नाम के लिए जो है, जो हेड हमारा हेड ऑफ द इंडिया, इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. Israel took control of it in the 6 day अरब इजरायली वॉर. 6 day अरब इजरायली वॉर कब हुआ था? 1967 में. एंड हैज़ ओवर द ईयर्स एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स देयर. 6 day अरब इजरायली वॉर 1967 में हुआ था, ध्यान रखना. A joint statement from USA, the UAE and Israel has been issued which says that delegations would meet in the coming weeks to sign the deal on direct flight security telecommunication. ठीक है. Formed in 1971, the UAE मतलब United Arab Emirates. United Arab Emirates basically 7 शेखडॉन से बना था, 7 एमिरेट से, 7 इससे बना है. एमिरेट्स मतलब एक एरियाज़ होता है जो शेख्स जिसके हेड होते हैं, वो 7 शेख से यूएई बना है. शेख डॉम्स बोलते हैं उनको. ठीक है. ऑन द अरेबियन पेनिनसुला विच डिड नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल ओवर इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड होम टू पैलेस्टीन्स. द यूएई रिलाइड ऑन वाइट कॉलर. ठीक है. कौन वाइट कॉलर कौन है? पीपल हु perform professional desk, managerial or administrative work, Palestinians, in creating its nation and maintain its stance that Israel should allow the creation of Palestinian state on land it seized in 1967 war. In recent years, ties between Gulf Arab nations and Israel have quietly grown. Israel और Gulf nations के बीच में अच्छे संबंध अच्छे होने के चालू हुए. In part over the shared enmity of Iran and the Lebanese militant group Hezbollah. ठीक है. जो ईरान के shared enmity मतलब ये जो है यूएई और इनका भी सऊदी का एनिमी है ईरान, एंड हिजबुल्ला जो मिलिटेंट ग्रुप है वो भी इनका एनिमी है. तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बेसिकली अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. द यूएई ऑल्सो शेयर्स इजराइल्स डिस्ट्रस्ट of Islamist group like Muslim Brotherhood and militant group Hamas that holds the Gaza Strip. ठीक है. ये था हमारा इजराइल. एक मिनट, मैं शायद कुछ ठीक है, चलो ओके, दैट्स इट. तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द इजराइल यूएई पैक्ट. ठीक है. एंड उसका थोड़ा सा हमने हिस्ट्री के बारे में भी बात किया. नागा सोवरेनिटी रिकग्नाइज्ड इन 2015 पैक्ट, सेज मुइवा. नागाज विल कोएग्जिस्ट बट नॉट मर्ज विद इंडिया, ही रीइटरेट्स. अब ये जो हमारे नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुइया है, NSCM IM, जिसके लीडर है थुइंगा लेंग मुइवा. तो ये ऐसे ही बात कर रहे हैं. तो हम थोड़ा सा बात करेंगे नागाज के बारे में. बेसिकली नागाज, हु आर द नागाज. ठीक है. एंड व्हाट इज़ द इशू. द की डिमांड ऑफ नागा ग्रुप्स हैज़ बीन अ ग्रेटर नागालैंड. इनका क्या डिमांड है? नागाज जो है कि इनका डिमांड है ग्रेटर नागालैंड, सोवरेन स्टेटहुड दैट इज रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज टू ब्रिंग all Naga inhabited areas in northeast
अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला, मतलब जहाँ जहाँ नागाज रह रहे हैं वहाँ पे आप सारे स्टेट्स में, मतलब जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, इसको बना के आप हमें एक, तो उसमें थोड़े थोड़े पीसेस काट के आप हमको एक स्टेट बना के दो मिला के, ठीक है। द डिमांड ऑल्सो इंक्लूड सेपरेट नागा यजाबो मतलब सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। दैट किसका डिमांड है? नागा का डिमांड है कि हमको एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमारा, जिसको हम बोलेंगे नागा यजाबो, और नागा नेशनल फ्लैग, एक नेशनल फ्लैग भी चाहिए हमको। अब नागाज बेसिकली क्या है? दे आर नॉट अ सिंगल ट्राइब, एक सिंगल ट्राइब नहीं है नागा, बट एन एथनिक कम्युनिटी that comprises several tribes who live in the state of Nagaland and its neighborhood. नागा बेसिकली एक कम्युनिटी, एक ट्राइब नहीं है, सिंगल ट्राइब नहीं है, बट एक एथनिक कम्युनिटी है दैट कंप्राइजेज सेवरल ट्राइब्स हु लिव इन द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड नेबरहुड। नागा किसको बिलोंग करते हैं? इंडो मंगोलियाइड फैमिली को। नागाज claimed sovereignty on the basis of prior sovereign existence and differences, which is today expressed in terms of uniqueness। मतलब बेसिकली क्यों वो लोग ये करते हैं, डिफरेंसेस ये करते हैं, बिकॉज दे आर यूनिक फ्रॉम द अदर। देर आर 19 मेजर नागा ट्राइब्स, नेमली एओएस, ऑस भी जो बोलते हैं, अंगामीस, चांग्स, चाकेसांग, कबुइस, कचारिस, खैन मंगाज, कोन्याक्स, कुकीज़, लोथास, माओस, मिकिर्स, फॉर्म्स, रेंगमाज, संगताम्स, सेमास, तंगखुल्स, यमचुमगर एंड जीलियांग। आई एम वेरी सॉरी टू माई नागा फ्रेंड्स कि मैं इसको शायद प्रॉपरली ठीक से स्पेल नहीं कर पाया, या ठीक से ये नहीं कर पाया। बहुत डिफ़िकल्ट है नाम, बट येस श्योरली। सो दिस वॉज द नागा इशू विच वी स्पोक अबाउट। आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल, ठीक है। तो क्या है और डिस्कस करने के लिए? जो गैलेंट्री अवार्ड्स है इसके बारे में हमने बात किया है। इंडिया बिलीव्स इन, ओके ठीक है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है लग रहा है मुझे, लेट्स सी कुछ है क्या। जो यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें हमने बोला है कि हम बात नहीं करेंगे इलेक्शन के बारे में। टर्की हिट्स आउट एट फ्रांस ओवर सी स्टैंड ऑफ। तो आपको जैसे पता है कि मेडिटेरेनियन सी में ग्रीस और टर्की सामने सामने आए, you know, tensions have been aroused in the Mediterranean Sea, basically the East Mediterranean Sea। क्यों? क्योंकि एक ऑयल गैस, ये गैस रिच एरिया है दैट हैज़ बीन डिस्प्यूटेड बिटवीन ग्रीस एंड टर्की। तो फ्रांस अपने ये भेजा, ये जो साइप्रस है, साइप्रस इज़ एन आइलैंड बेसिकली इन द मेडिटेरेनियन सी, तो उसके पास में है। तो देर आर टेंशंस बिटवीन टर्की। तो टर्की बोलता है कि फ्रांस इज ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, फ्रांस डोंट बी ओवर स्मार्ट, ऐसे टर्की बोलता है, ठीक है। इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। RBI to transfer 57,128 crore surplus to center फॉर फाइनेंशियल ईयर 20, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, हम इसके बारे में जानेंगे ये है क्या। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन August 26 डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र, जो लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, August 26 को 1,76,051 जितना जो करोड़ है ये सेंड किया गवर्नमेंट को, ठीक है। उसमें से 1,23,000 करोड़ वेर the surplus for the year 2018-19 and 52,637 crore of excess provisions identified as per the revised economic capital framework। रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, तो ये हिसाब से उनको पैसे दे रहे। कौन से, क्यों दे रहे पैसे?
रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ECF इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, adopted at the meeting of the central board. The surplus distribution policy of the RBI that was finalized in line with the recommendation of Bimal Jalan committee, very important, Bimal Jalan committee ने किया, बोला था, इनके recommendations ने बोला था कि जो surplus है RBI के पास that should be transferred to the government of India. ठीक है, एंड उनके इसमें क्या बना था, टू रिव्यू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ RBI. मतलब बिमल जलन कमेटी ये RBI के कंसल्टेशन से और गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से बना था. क्यों? टू रिव्यू द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ द RBI ECF, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. In view of RBI's function as a lender of last resort, it needs to maintain some contingent risk buffer to ensure the economy against any tail risk of financial stability crisis. मतलब contingent risk buffer, जैसे आपको सबको पता है RBI is the lender of last resort, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको contingent risk buffer रखना पड़ेगा. तो कितना बफर बोला है बिमल जलन कमेटी ने? Said that the contingent risk buffer needs to be maintained at the range of 5.5 to 6.5 of the RBI's balance sheet. ठीक है, तो ध्यान रखना 5.5 to 6.5. बिमल जलन को भी याद रख. ठीक है, is there anything else we are going to discuss? No, that's all from my side. I think that's it for today. And I hope आपको बहुत कुछ सीखने मिला. And please subscribe to my channel and please share my video so that others also get benefited from this. And believe me, the more you spread, the more you get. Thank you so much. Please like the video if you like it. And please subscribe to my channel. Thank you.